Noha, you can turn your camera on, right? The video. Yes, sir. Yes, no. Yeah. So please. Okay. I'm just waiting for Mariam. Okay, we'll start. The topic that we are going to have, it is organic. This is topic है ना, चैप्टर का नाम नहीं है, इसमें टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है. So this is the crux of the main thing about organic chemistry. It's reaction mechanism. Let me reshare my screen. Yeah. Organic reaction mechanism. So basically आपके पास in chemistry we know that what is happening in chemistry. What happens? We have reactants or we have products. Basically सारे chemistry में यही होता है. Basically we are studying the we have to study the change that is happening. है ना? Whenever reaction happens, we have to study the change. और change की study करने के लिए we have to study the properties of reactant, we have to study the properties of product. That is why we study the properties of different types of matter. ना? अगर आपको याद हो 9th standard में the topic started with matter in our surrounding, right? Started with matter in our surrounding. Then classification of matter. Is matter around us pure was the next chapter. So we have to study the properties of reactant and product, but basically हम लोग के at the end क्या पढ़ना रहता है? We have to study the change that is happening whenever there is a reaction. Whenever chemical changes happen, we have to study that particular change. अब इस change को पढ़ने के लिए देखिए in organic chemistry, यानी कि organic chemistry में आपको क्या पढ़ना है? Reactant. Now reactant can be divided into two further categories. Reactant में आपके पास आते हैं substrate and reagent. Substrate and reagent. Now, what is a substrate? Substrate is going to be the organic molecule. Organic molecule या compound. Reagent जो होगा, this is going to be, it is generally inorganic molecule. लेकिन organic भी होता है. Organic जब होता है, it is highly and highly reactive. ठीक है? So it can be inorganic or highly reactive species. ठीक है? It will be highly reactive species. Now substrate and reagent they will combine, ये reaction देंगे और बीच में आपको मिलेगा एक intermediate. ठीक है? This intermediate is very unstable. ये generally unstable होता है. क्या होता है? Generally unstable होता है. When substrate and reagent they combine, they will form intermediate. ये intermediate unstable होता है और उसके बाद after intermediate से reactant बनना बहुत ही fast. भाई साहब रिएक्टेंट क्यों कर रहे हैं? सॉरी माय बैड. इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनना बहुत ही फास्ट बिकॉज प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी स्टेबल. ध्यान दीजिएगा एक बात को. सी हियर द रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड्स. द रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड व्हिच आर अवेलेबल इन द यूनिवर्स. नेचर में आपको मिल जाते हैं. तो दीज आर स्टेबल. स्टेबल होता है. इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट आपको नेचर में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ये अनस्टेबल होता है. ये अनस्टेबल, दिस अनस्टेबल. सो यू कैन सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना. यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल. सो क्या ख्याल है, ये फास्ट होगा या स्लो होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? टेल मी. सोच के बताएं. लिखने की जरूरत नहीं है नुहा. ठीक है? इफ यू आर राइटिंग प्लीज डोंट राइट नाउ. ओके, बताइए क्या लगता है आपको? क्या कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगा? टेल मी गाइस. यस और नो? नुहा, यू एग्री विद दिस? नुहा, आपको आवाज नहीं आ रही है? Yes, Nuha, am I audible? Yes, sir. हम पूछ रहे हैं क्या कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगा? आपको स्टेबल अनस्टेबल नहीं समझ में आया? आप हाँ ना कुछ तो बोलेंगे. आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले ये बताइए नुहा आप. Yes, sir. My voice is completely clear? Yes, sir. You don't have any problem in a little bit of Hindi? No, sir. No problem, right? So
What do you think? Is there anything in this complete universe which want? Acha, what is good? Stable is good or unstable is good? What is good, Noha? Stable. Stable is good, right? So will anything want to go from stable to unstable? No. No, right? So if something does not want to go from stable to unstable, that means this process of going from stable to unstable will be requiring some kind of energy, and also we can generally say that it is going to be slow. Correct? It is going to be slow. This step of a reaction, this step of the reaction is going to be slow. Now, when you get the product, this product is already, this is a product, right? So if you want to go from unstable to again stable, that is product. This will be again what? It will be fast. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. क्या ख्याल है नोहा? Now, if you are going from unstable to stable, it is going to be fast. Now, अच्छा, अब ये बताइए, what is the step that is more important? क्या पढ़ना ज्यादा चाहिए? Should I study the formation of intermediate or the formation of product? This is my first step and this is my second step. खुद से बताइए आप, what is more important to study, the first one or the second one? क्या ख्याल है आपका? Okay, Mariam. Noha, what do you think? अच्छा, इन जनरल चीजें आपको जिंदगी में आपको क्या लगता है, लोगों को जो चीजें चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी चाहिए या धीरे धीरे चाहिए? धीरे धीरे। धीरे धीरे चाहिए आपको? आपको क्विक रिच नहीं बनना है? अच्छा, बहुत सब्र है फिर तो आप में नोआ। आई थिंक यू आर दी ओनली वन। धीरे धीरे चाहिए आपको, ऐसे फट 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 चीजें हो जाए, आपके घर में काम चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। कभी कभी काम होता है वो देखा होगा आपने घर पे, फटफट अगर काम हो जाए तो क्या अच्छा रहेगा खराब रहेगा नुहा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना, फटफट काम हो जाए तो, ठीक है ना? अच्छा, आपके यहाँ फटफट काम हो रही है बहुत सारी चीजें, लेकिन एक काम जो है स्लो हो रहा है। एक काम क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो आप उधर ज्यादा मुतवज्जे होंगी ना, you will completely give your focus to that slow part, right? How to increase the speed, of this slow step, so that ये आगे का step तो fast है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, we don't have to do anything, we have to study the slow step. Why? Because we have to study the slowest step to determine how to increase the speed of this particular step. बात समझ में आ गई? ठीक है? So that is why the formation of intermediate, अब देखिए, स्लो को अगर फास्ट करना है, क्या कहा हमने, हम लोग को क्या करना, स्लो को फास्ट करना, ये समझ में आया आप लोग को? स्लो को फास्ट करना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो इंटरमीडिएट होता है वो तो अनस्टेबल तो होता है, लेकिन अनस्टेबिलिटी में भी देयर आर डिग्रीज ऑफ अनस्टेबिलिटी, राइट? समथिंग विल बी वेरी अनस्टेबल, समथिंग विल बी अ बिट लेस अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी में भी स्टेबिलिटी आएगी। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही है? बताइए। इन अनस्टेबिलिटी ऑल्सो, जैसे बुरे लोगों में भी तो क्लासिफिकेशन होता है, वो बहुत बुरा होता है ना, कोई इससे कम बुरा होता है, कोई इससे कम बुरा। बुरे में भी अच्छाई होती है कुछ ना, तो उसी चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। हाउ टू हैव, अगर आपके पास इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यू हैव इंटरमीडिएट 1, यू हैव इंटरमीडिएट 2, यू हैव इंटरमीडिएट 3, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इंटरमीडिएट 1 इज मोर स्टेबल, सॉरी, इंटरमीडिएट 1 इज लेस स्टेबल देन इंटरमीडिएट 2, और इंटरमीडिएट 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक रिएक्शन हो रहा है, इसमें स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब बताइए, तीनों इंटरमीडिएट बन रहे हैं रिएक्शन में। कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं? 3 इंटरमीडिएट्स। इन दिस इंटरमीडिएट 3 इज हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, देन 2 एंड देन 1। व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी? टेल मी नोहा, मरियम। 3 इज हैविंग, है ना? तो समझिए, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये आपके पास रिएजेंट है, इससे आपके मिल रहे हैं 1 2 3 3 2 एंड 1। यहाँ पे हमने लिखा है स्पीड ऑफ दिस फर्स्ट, ये वाले मतलब तीनों बन रहे हैं ना, तो तीनों अलग अलग लिखा हमने, स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड, उल्टा लिख दे रहे हैं हम, क्या लगता है? हाँ, उल्टा लिख दे रहे हैं। अरे बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं यार आज? ये बताओ फिर से, हमको स्टार्ट करना? हम नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग देखो तुम लोग। 15 मिनट हमने वेट किया था आप लोगों का। S1 किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? S1 होगा सब। S1, S2 एंड S3 आर स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन। कौन सा फास्टेस्ट होगा यहाँ पे? S3। क्या ख्याल है नोहा? इंटरमीडिएट 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, तो सबसे आसानी से बनेगा इंटरमीडिएट 3। क्या ख्याल है नोहा? सही है।
नाउ इफ इंटरमीडिएट 3 बहुत आसानी से बन रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, तो इंटरमीडिएट 3 से जो रिएक्टेड जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो भी क्या मिलेगा आपको, जल्दी मिलेगा. सो द रिएक्शन में इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे. वी विल से दैट ओके फाइन, ये पाथवे रिएक्शन इज गोइंग टू टेक this pathway, the reaction is going to take this pathway. Why? Because the stability of intermediate 3 is highest. बात समझ में आ गई? ठीक है. आप लोग एक स्कूल में गए, आपको जो सेक्शन मिला नुहा, वहां पे सब बदमाश, तो आप किससे दोस्ती करेंगी? जो उन बदमाशों में सबसे शरीफ हो. भले ही आप ऐसे मतलब बिना दोस्ती के भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात बोली जाए कि दोस्ती करनी है, कोई पार्टनर चूज ही करना किसी प्रोजेक्ट में. उन बदमाशों में जो सबसे शरीफ होगा, आप उनके साथ रहिएगा. सही है. उसी तरह से in all of these possible intermediate, whichever is most stable, that will be preferred, और उसी से हमारा पूरा रिएक्शन जाएगा. क्या फंडा समझ में आया क्या करने वाले हैं? सुनो, मेन थिंग समझ में आया ना, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी. बोलो भाई, है ना? नोहा, मरियम, बाकी बच्चे जो लेट आए हैं उनको जो समझ में आया वो समझे, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा आप लोग. मेन यहाँ पे समझ लीजिए इंटरमीडिएट्स एंड इट्स स्टेबिलिटी. इंटरमीडिएट कैसे मिलता है? सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इज गोइंग टू गिव यू इंटरमीडिएट. फिर इंटरमीडिएट से आपको प्रोडक्ट मिलता है. फ्रॉम हियर यू कैन राइट, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं. ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं, जो समझना था आपने समझ लिया. लिखने की जो चीज है वो हम बस रहने देंगे, बाकी सब मिटा दे रहे हैं. ठीक है ना? सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग. लिखिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू राइट. चलिए, इतना लिखना था आपको, बाकी बात तो ऐसी बातें थी बस. राइट दिस डाउन. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. मैच देख रहा है क्या कोई? Is anyone watching the match? अब्दुल हमीद, मार्टिन, नोहा, सिद्दीका, मरियम? नहीं, कोई नहीं इधर. नो वन. आप नहीं देखते क्रिकेट नोहा? No, sir. क्या क्या देखते हैं फिर बताइए. कोई भी स्पोर्ट्स? I watch basketball. यू वॉच बास्केटबॉल. ओके. एनबीए? Yes, sir. ओके. कौन अच्छा, लेब्रॉन जेम्स या फिर स्टेफ करी? किसकी टीम में आप? स्टेफ करी ना? LeBron James. लेब्रॉन जेम्स. अरे सेम ईयर. लेब्रॉन जेम्स. स्टेफ करी हमको पसंद ही नहीं आता. मतलब ही इज वेरी गुड, बट मतलब पता नहीं क्यों वो पसंद ही नहीं आता. इज दैट सेम फॉर यू आल्सो? Yes, sir. है ना? मतलब यू अप्रिशिएट हिज बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटीज, जो थ्रीज वगैरह, बट लेकिन वो पसंद ही नहीं आता. मतलब ऐसा आदमी भी खराब नहीं है इफ यू सी देयर पोस्ट, लेकिन वो पसंद ही नहीं आता. लेब्रॉन जेम्स फॉर लाइफ, राइट? Yes, sir. Recently I have not been watching NBA much. Right now LeBron is in Lakers only ना? Lakers से तो चेंज नहीं हुआ? No, sir. Okay. So you follow I guess, right? NBA? Yeah. Nice. Anyone else? Basketball? और कोई है क्या बास्केटबॉल? नहीं. फुटबॉल है कोई? फुटबॉल वाले होंगे एक दो. फुटबॉल, मार्टिन फुटबॉल. हाँ Martin? Yeah, yes, sir. Yeah. You follow football. So Ronaldo, Yeah. Messi? Ronaldo. Okay. But Ronaldo is good, but Messi is a better player, no? But I feel like Ronaldo is a better goal scorer. That is true. Mariam has to say something or what? Regarding Ronaldo or Messi? No, sir. Nothing? Okay. Mariam has raised hand. Write this down quickly and raise your hand. ज़्यादा कुछ नहीं है लिखने के लिए. Noha, you remember how to raise hand? Nice. It's very nice. चल ठीक है. Everyone is done. ठीक है.
चलिए, now we are going to write some details. Okay, तो यहाँ पे लिखिएगा what is substrate. We have written the substrate, but फिर से लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में. Substrate is going to be the molecule whose carbon atom is involved in new bond formation. Generally, it is an organic molecule. Generally, it is an organic molecule. Then you will write reagent. ठीक है, reagent. What is reagent? तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के अलावा जो आपके पास प्रेजेंट रहता है तो वही उसी को हम लोग रिएजेंट बोल देते हैं ना. दी अदर मॉलिक्यूल है ना, दी अदर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के अलावा जो होते हैं, इट इज जनरली इनऑर्गेनिक. इट इज generally inorganic. It is generally inorganic or charged organic molecule. Charged organic molecule. ठीक है. सो अच्छा, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. करेक्ट है गाइस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. क्या ख्याल है? नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोले. हर केमिकल रिएक्शन में तो ये होता है, कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं. अरे भाई बोलो. सिद्दीका, मार्टिन, अब्दुल हमीद, है ना? ठीक है, यस सर नो सर चलते रहना चाहिए कम से कम थोड़ी चीजों में. ठीक है, इन एवरी केमिकल रिएक्शन कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे. पहले क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है पहले या फॉर्म होता है पहले? क्या होता है पहले, बताएं जरा, जोर से बोले प्लीज. पहले फॉर्म ही हो जाएगा बॉन्ड. भाई बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो नया फॉर्म होने की जगह बचेगी ना. सोचिए जरा इस बात को. Until and unless a bond is broken, नया बॉन्ड बनेगा कहां पे? सोचिए. है ना? थोड़ा सोचिए इस बात को. When if सारे बॉन्ड्स हैं ही पहले से, तो नया बॉन्ड बनने की तो जगह नहीं है ना. तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे तभी नया बॉन्ड बनने की जगह मिलेगी. सो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? बॉन्ड का टूटना, है ना, बॉन्ड का टूटना. सो दैट इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वी विल राइट इट डाउन, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज. केमिकल रिएक्शन involves breaking and formation of bonds. Since organic molecule has, organic molecule में कैसे बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट या फिर आयनिक? कोवेलेंट या आयनिक? टेल मी गाइस. अरे बोलो भाई, भूल गए, नहीं पता. कोवेलेंट, वेरी गुड. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज कोवेलेंट बॉन्ड. As organic molecule has covalent bond, fission or breaking of covalent bond occurs in organic reactions. ठीक है. So our topic will be fission of covalent bond. Fission of covalent bond. Please write this down.
फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन या फिर ब्रेकिंग जो होता है, प्लीज राइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of fission या cleavage of covalent bond. Cleavage of covalent bond. Okay, you're right. पहला होता है heterolytic cleavage. This is important now. Directly they can ask you in your examination, give an example of heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage. ठीक है, in this what happens? मान लीजिए आपके पास you have a bond A and a bond A atom bonded with B atom, and the electronegativity of B is greater than that of A. Electronegativity लिखिएगा मतलब, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए. Electronegativity of B is greater than that of A. Now, if the bond is going to break, अच्छा electronegativity का मतलब पता समझ में आता है ना? What is electronegativity? Tell me guys, क्या मतलब वो? Electronegativity मतलब क्या हुआ? B will क्या करेगा? B A से क्या करता है? बोलो भाई. B is going to क्या करता है? B more electronegative है. क्या मतलब इसका? What information is it giving you? More electronegative तो क्या करेगा? कोई आइडिया किसी को? No one. हाँ मरियम बताएं. अरे भाई जल्दी बोलो. It will attract. हाँ करेक्ट है ना. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट, इट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ध्यान दीजिए क्या मतलब, इट इज गोइंग टू पुल. भाई आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? सिद्दीका, मार्टिन, अब्दुल हमीद, यार माइक कैमरा कुछ तो ऑन करो तुम लोग. माइक कैमरा सब बंद करके बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. सुमुन बुकमुन उम्यून का हो गया है आप लोगों का बिल्कुल है. चलिए माइक ऑन करें, माइक ऑन करें. सिद्दीका, ठीक है ध्यान दीजिए. सो इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब जब बॉन्ड टूटेगा, व्हेन बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? बोलो भाई. A लेके जाएगा या B लेके जाएगा? B की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करना, तो कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड टूटेगा तो B लेके जाएगा. नोहा यू एग्री विद दिस? यस और नो नोहा? Yes, sir. ठीक है. सो दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऐसे शो किया जाता है. देखिए इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है? बॉन्ड से निकल के किसके पास जा रहा है? B के पास जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज द टेल और ये हेड है. टेल रिप्रेजेंट की कहां से निकल रहा है और हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कहां को जा रहा है. ठीक है, सो यू विल हैव, अब समझिए जरा, दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू ए, दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू बी, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? बी के पास. तो ए बेचारे का तो इलेक्ट्रॉन गया ना, तो ए को मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी को क्या मिल जाएगा? नेगेटिव चार्ज. बात समझ में आ गई सबको? ये सुनो प्लीज टेल मी. हेटेरोलिटिक क्लीवेज है ना. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? एक एलिमेंट एक एटम, बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में. वन एटम टेक्स द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन. सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है? एक एटम ले गया. इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज. अब दूसरा क्या होगा थोड़ा बताइए तो. सेकंड, एक तो हेटेरोलिटिक होगा, दूसरा क्या होगा? बोलो. होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा वो भी बता दीजिए जरा. होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा? इसमें हेटेरोलिटिक में क्या हो रहा है? एक सारे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना. बोथ विल टेक वन इलेक्ट्रॉन, है ना. बोथ विल टेक. अरे बात समझ में आ रही है? देखो बिना हेटेरोलिटिक से ही होमोलिटिक समझ में आ गया. ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज हियर गाइस. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में यू हैव रिटन द एग्जांपल्स. इसको यहां पे लिखिए और उसके बाद वी विल स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज. सो प्लीज राइट. The more electronegative, the more electronegative atom gets both the electron and the other atom gets positive charge. ठीक है. So the shared pair of electron is
taken away by one of the atom. तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में बेसिकली यही हो रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज. सेकंड पार्ट है. homolytic cleavage. In this, what happens? Please write. Both atoms get one electron each after the breaking of bond. After the breaking of bond. This generally happens when both atoms have similar electronegativity and in the presence of helper. क्या चाहिए होता है भाई? helper. HELPR. H क्या है आपके पास? देखिए, H is heat, E is electricity, L is light, P is peroxide और R जो होता है radical. R is radical. ठीक है. Heat can be shown like this. Electricity के लिए और कुछ नहीं है. Light can be shown as H nu. Peroxide के लिए नहीं, radical के लिए भी नहीं. But you remember heat and light. Okay, these are important. Radical आप लोगों को नहीं पता. You would not know what is radical, but other things I hope you know, right? Hydrogen peroxide. You may have heard this thing. Hydrogen peroxide. When you have peroxide, then it can happen. Heat, electricity, light, and peroxide. Radical we will study. Don't worry. छापिए. Okay. I think people are done. After this, you will write order of electronegativity. This is very important because अगर आपको electronegativity का order नहीं पता है, then it will be very difficult for you guys to break the bonds. है ना? Bond breaking में आपको बड़ी difficulty होने वाली है. ठीक है. So लिखिएगा FON phone, CL call, phone call, bro. Then you will have इश्क प्यार है. इश्क क्या है? प्यार है. So you can remember this as what? Phone. And this is call. This is bro. This is इश्क. देखिए नुहा, are you writing this? Yes, sir. उसको लिखिएगा, लेकिन ना जैसे मतलब याद करके लिखिएगा. ऐसे एक एक अगर आप if you are writing one symbol एक एक करके F फिर O फिर N, तो फिर याद नहीं होगा ना आपको. I'm telling you the trick. So you will read the tricks 2-3 times. फिर उसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा. लिख लीजिएगा सारा until you are confident. लिख लीजिएगा, then you can check it. ठीक है ना? हाँ. Okay. इश्क प्यार है. ठीक है. Those who are writing, please ऐसे एक एक एलिमेंट F O ऐसा मत लिखिएगा. फोन कॉल ब्रो इश्क प्यार है. याद रहेगा? क्या ख्याल है नोहा? आसान है? नोहा तो कुछ नहीं बोलती है यार, बहुत ही साइलेंट बच्ची है. ठीक है, नहीं ठीक है चलते हैं, हम जबरदस्ती नहीं करें. फाइन इफ यू डोंट वांट टू आंसर सो मच. आप बस थोड़ा ये रखें ना, अगर समझ में ना आए तो फिर हमको रोक दिया कीजिए. ठीक है नोहा? Okay, sir.
ओके, ऐसे सारे ही टीचर्स ये चीज बोलते हैं कि आप हमको 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे। तो मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि आप हमसे 10 बार पूछे तो मेरे अंदर सब्र हो 10 बार बताने की। बोलने की बातें अलग होती है लेकिन जब बच्चा सच में 10 बार पूछ लेता है तब टीचर को समझ में आता है नहीं भाई कुछ चीजें सोच समझ के बोलनी चाहिए, है ना। थोड़ी आप भी कोशिश करें समझने की, है ना। टीचर सारा कुछ समझा दे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, है ना। दोनों तरफ से थोड़ी मेहनत रहनी चाहिए। रेज योर हैंड वंस यूर डन, ठीक है ना। आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद यू कैन चेक इट। मरियम हैज रेज्ड हैंड। मैच आप ओके। अब्दुल हमीद नॉट डन, जल्दी करें। अब्दुल हमीद, मार्टिन एंड सिद्दीका। सिद्दीका आज क्या हुआ है, आपको कुछ बोला नहीं है? हाँ सिद्दीका, so you can't turn your mic on still or what? अच्छा, मैसेज टू सर माय वाईफाई इज। अरे भाई माइक ऑन करने से वाईफाई का क्या ही लेना देना है? इट्स फादिल, आई डोंट नो हु दिस इज। दिल नाम का चल नहीं है इसका इसमें। चलिए, आई थिंक एवरीवन इज डन। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, है ना। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डैश इलेक्ट्रॉन, लूज या गेन। लूज या गेन क्या बताइए? क्लास 10th की बातें ये तो थोड़ी याद रहनी चाहिए। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर था। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डैश इलेक्ट्रॉन, क्या करना पसंद है, लूज करना या गेन करना? चैट में माइक मत ऑन करिए, चैट में बताइए जरा, चैट में बताइए। अच्छा, मरियम को बहुत उत्सुकता, मरियम को लगता है आंसर आ रहा है। मरियम आप 1-2 कर दो जरा। मरियम यू कैन डू 1-2। हाँ बताइए। आप ऐसे कर दें, इशारे कर दीजिए, उंगली से, उंगली से इशारा कर दीजिए आप। नहीं पता, मरियम इज नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, थोड़ी हम आपसे ये कहते हैं, ये बैलून क्यों निकलने लगा आपके कैमरे में से? हाँ मरियम, ये क्या इफेक्ट आ गया, बैलून उड़ रहे हैं आपके इसमें? ठीक है, ओके फाइन। थिंक अबाउट सोडियम एज अ मेटल, राइट? सोडियम मेटल होता है, Yes. बोलो भाई। ठीक है, सबको पता है सोडियम मेटल होता है, कोई नई चीज हमने बताई क्या? अरे बोलो हाँ या ना। इज इट एनीथिंग न्यू? No. No, sir. नो। व्हाट इज द आयन ऑफ सोडियम? सोडियम कौन सा आयन बनाता है, ये याद होगा, बोलो। ऑल ऑफ यू गाइस स्पीक स्पीक स्पीक, जल्दी 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 बोले, जो दिमाग में आ रहा। नोहा जल्दी, नोहा क्विकली टेल मी। Na का आयन। हाँ ठीक है मरियम, ठीक है। नोहा, Na का आयन क्या होता है? अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है वो बताइएगा आपको, ठीक है ना नोहा? क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या अच्छा लग रहा है इसमें से, क्या अच्छा लग रहा Positive. है? मतलब कोई नई चीज नहीं थी, जब आपने पॉजिटिव देखा तो आपको याद आ गया, है ना। ठीक है, अब बताइए, मेटल, ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या गेन किया? Again. Loose. गेन या लूज? Loose. लूज किया। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास था, ऑल ऑफ यू हैड दिस इन योर ब्रेन दैट मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। Loose. बट अब आप लोगों देखिए, ये जो अभी चीज हुई है आपके साथ, इसको पकड़ के रखिएगा। Not actually that metal have tendency to lose electron, but how to retain the information that you already have in your brain. Correct है नोहा? So this is very important कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहिए। मेटल्स में आप मेटल सोचिए लूज इलेक्ट्रॉन गेन, तो जो कुछ मेटल के बारे में आ रहा है ना, आप उसको दिमाग में लाते रहिए, एंड देन योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली वर्क एंड गिव यू दिस आंसर दैट फाइन। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आए ना ऐसी चीजों के बारे में, तो आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहिए एंड राइट इट डाउन। आई वुड से एक तो होता है कि सोच सोच के बारे, उसके बारे में समझना कि मतलब ये होता है वो होता है, और एक होता है लिख लिख के करना।
So if you will start writing things down, then your brain will start working more fastly. इस वजह से हम बता रहे हैं, because I hope you understand that 11th and 12th का syllabus काफी vast है ना? 11th की चीजें खास हो जाए, मतलब केमिस्ट्री का तो हमको पता है, दिस विल हैपन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. केमिस्ट्री में आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है आपका 12th स्टैंडर्ड में, उसका हम आपको बता, मतलब एविडेंस बता रही है, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं. बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ये देखिए, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन, और कहाँ गया भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? मैथ कैलकुलेशन था, और एक इस बार हमने एक और बैच लिया था, दैट वाज ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई थिंक आई लॉस्ट इट और व्हाट. ये तो नहीं है बैकअप. 11th 12th बैकअप क्लासेस, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, देखिए इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, मरियम आपको याद आ रहा होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना, ये हमको पढ़ाना पड़ा 12वीं कक्षा के बच्चों को. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, राइट फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेटेड, बिल्कुल बेसिक्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसके बारे में. देन व्हेन बेंजीन इज एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो दिस बेसिक्स जो अभी आप लोग पढ़ने वाले ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतना मतलब 12वीं में तो आपको इसको ये चैप्टर रिवाइज करना ही पड़ेगा. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको आ गया, जिन लोगों ने पढ़ा है वो स्पफ वाला मेथड से यू कैन हैव आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इफ यू स्टार्ट डूइंग इट थोड़ा सा. बट ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई व्हेन मेटल्स आर बॉन्डेड, when metals are bonded to carbon, then on cleavage of bond, electron is taken away by, बोलो भाई कौन ले जाएगा? अगर मेटल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, वी हैव अ मेटल एंड कार्बन बॉन्ड. अब जब बॉन्ड टूटेगा तो मेटल लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, या कार्बन लेके जाएगा सेकंड ऑप्शन. क्या ख्याल है, कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन? कार्बन. कार्बन लेके जाएगा, है ना, क्योंकि मेटल क्या करता है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो कैसे लेके जा सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना. लॉजिकली इसको समझते रहे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक हो जाएगा. थोड़ा सा रटने की कोशिश करना, जहां से चालू किया आपने वहीं से खत्म, मामला खत्म, ठीक है. छापिए जल्दी छापिए. जल्दी छापिए. I think you will have a question in the NCERT textbook, है ना, इसके बारे में. तो इसको हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. NCERT class 11th part 2 chapter number 5 and part 2. ठीक है, आगे बढ़े. आई थिंक गाइस हैव रिटन, देखिए गाइस, सी दिस क्वेश्चन. आपके पास सवाल है, यूज द कर्व्ड एरो नोटेशन एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टर. अच्छा, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. इसमें हमने एग्जांपल नहीं लिखाया था आपको ना, होमोलिटिक क्लीवेज. इफ यू हैव एनी स्पेस इन द होमोलिटिक क्लीवेज ना, उसमें वी विल राइट समथिंग डाउन, बिकॉज वी हैव टू शो ना कि किस तरह से दिखाते हैं होमोलिटिक क्लीवेज को. So let us suppose you have AB, और यहाँ पे हेल्पर किस में से कोई एक है. So what will happen? One electron will go to A, तो half-headed arrow. One electron will go to B, तो half-headed arrow उसके लिए. इसको half-headed arrow या fish hook arrow बोलते हैं, याद रहेगा. So you will get A में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसको बोलते हैं A radical.
बी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको बोलेंगे बी रेडिकल. सो इफ यू हैव कार्बन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल, इस तरह से रेडिकल्स आ जाएंगे. ठीक है, इफ यू हैव स्पेस प्लीज राइट दिस डाउन. आई होप यू हैव रिटन दिस नाउ. चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं जरा. Using curved arrow notation, show the formation of reactive intermediates when the following covalent bond undergo heterolytic cleavage. कैसा cleavage करना है यहाँ पे guys? हेटेरोलिटिक क्लीवेज. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो यू विल गेट इंटरमीडिएट. यहां से भी आपको पता चला, राइट? फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. सी फर्स्ट वन. सो द बॉन्ड दैट दे हैव शोन ना, उसी को देखना. तो CH3 है आपके पास. आई होप ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड सल्फर के साथ नहीं है. वेन एवर आई एम राइटिंग CH3 बॉन्डेड टू सल्फर, सॉरी गाइस, CH3. ठीक है, सो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन या सल्फर? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या सल्फर? Sulfur. कौन सा? सल्फर है ना. इश्क, सल्फर एंड देन कार्बन, राइट? तो कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन या सल्फर? Sulfur. सल्फर. ये ऐसे क्या इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे प्लस मिल जाएगा आपको SCH3 और सल्फर पे नेगेटिव. व्हेन कार्बन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज तो इसको नाम देते हैं कार्बोकेटायन. क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटायन. ठीक है, अगला करें. ठीक है, सेकंड. यहाँ पे यू हैव CH3 बॉन्डेड टू CN. अब यहाँ तो बॉन्ड किसके किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में. क्या ख्याल है गाइस? नाउ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच कार्बन? कार्बन 1 2 करना पड़ेगा. अब पहला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या दूसरा वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो कार्बन तो कार्बन. कहाँ बताइए मरियम, एनी आइडिया? The second one अच्छा, सेकंड वन. वाई सेकंड वन? is nitrogen. नाइट्रोजन से अटैच है ना. ठीक है, वो तो सही बात है, नाइट्रोजन से अटैच है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा वहां से, फिर कार्बन खींचेगा. लेकिन एक और चीज देखिए जरा, CN इज लाइक दिस, राइट? ये पता है आप लोग को ना. ठीक है, नाउ दिस कार्बन इज व्हाट, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. Yes. और ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, आप लोग को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp एंड sp3. sp का ज्यादा होता है because in sp we have 50% s character. If there is 50% s character, that means most of the electron will be near the nucleus. nucleus में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, so what will happen in this case, again this carbon, the second carbon is going to get the electron and you will get a carbocation which is CH3 positive plus CN नेगेटिव. CN नेगेटिव को ना ऐसे लिखा जाता है, बट पता रहता है बच्चों को, सभी को पता है यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, सो चार्जेस जो लिखते हैं आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव लिखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव है ना, इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज है. करेक्ट है गाइस, है ना? ठीक है, ध्यान दीजिए. अगला आपके पास CH3Cu. तीसरा क्या है, यू हैव CH3 बॉन्डेड टू कॉपर. टेल मी, किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन? किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन या कॉपर? Carbon. कार्बन. वाई? बिकॉज कॉपर तो मेटल, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना. सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड वी विल गेट CH3. अब CH3 पे यहाँ पे नेगेटिव प्लस यू विल हैव कॉपर. नाउ इफ देयर इज एनी कार्बन एटम विद अ नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग कार्ब अनायन. आसान नाम है ना, कुछ डिफिकल्ट नाम तो नहीं है. कार्ब अनायन. छापिए गाइस.
अब यहाँ से हम लोग ना पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार्बन कार्बन हुआ तो कार्बन कार्बन का हमने कार्बन एंड कार्बोकेटाइन लिख दिया। लेट अस सपोज यहाँ 4 में करते हैं। व्हाट शुड वी डू? कार्ब चलिए ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ CH3 बॉन्डेड टू CH3, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने क्या है H न्यू, ठीक है। अब बोथ दी कार्बन एटम्स विल हैव सिमिलर, H न्यू का मतलब लाइट क्या है आपने, राइट। सो व्हाट विल हैपन, बोथ दी कार्बन्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। यू विल हैव CH3 with 1 electron and you will have another CH3 with 1 electron. तो जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वाला आ जाता है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। एंड बिकॉज दिस इज कार्बन का फ्री रेडिकल तो इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। प्लीज छापिए इसको। डन एवरीवन, छाप लिया सबने? Sir, the हम्म fourth one will also be heterolytic. नहीं हेटेरोलिटिक नहीं है, हमने अलग से बनाया। वो तो ये तो खत्म हो गया ना यहाँ पे। 3 उन्होंने पूछा था। Homolytic. हाँ, दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज, Okay. दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। नौ रन चाहिए इंडिया को, कोहली को चाहिए 8 रन सेंचुरी के लिए। 2 बॉल देखते हैं उसके बाद आते हैं आपके पास, ठीक है। नोहा इज लाइक ऐसा मास्टर मिला है, मैच देख रहा है। पहला दिन है क्लास का, दूसरा दिन है मेरे क्लास का। पढ़ाई होती है नोहा, पढ़ाई होती है यहाँ पे, पढ़ाई भी होती है। जब तो आप लोगों को हमें कुछ सवाल दे देते हैं, करिए जरा। होमोलिटिक क्लीवेज करना, ठीक है। फाइन, CH3 Br है, CH3 Mg है, और CH3 आयोडीन। 3 करके बताइए जरा। हेट्रोलिटिक, ओके, हेट्रोलिटिक। दो रन। देखिए जरा इस मी पहले वाले में किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन या ब्रोमीन? Bromine.
bromine. And the intermediate that we will be getting is known as, क्या बोलते हैं इस intermediate को, क्या बोलते हैं, CH3 positive को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। हाँ, कार्बोकेटाइन, ठीक तो है। फिर यहाँ पे CH3Mg किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन को या Mg CH3। को? सही है नोहा, सही हो रहा है आपका? यस सर। CH3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं नोहा? व्हाट इज दिस रिएक्टिव इंटरमीडिएट नोन? हाँ बोले। कार्बन आयन। कार्बन आयन, ओके वेरी गुड। CH3I किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन या आयोडीन? आयोडीन। आयोडीन को मिलेगा, राइट। सो यू विल हैव CH3 positive and then I negative. I negative. Okay. After this, right? The reactive intermediates. Reactive intermediates. सबसे पहला number 1 is going to be a कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन को हम लोग, आप लोगों ने वैसे कार्बोकेटाइन तो देखा हुआ है ना। एक सेकंड जरा थोड़ा अपना काम आसान करते हैं। Can you please copy this? आप लोग इसको कॉपी कीजिए, then I will explain it, okay? कॉपी कीजिए, raise your hand once you're done, and then we are going to explain it. अरे भाई, waiting for Noha, Abdul Hamid, Martin, and Sadiqa.
Just waiting for Siddiqa now. Seems Siddiqa is not here. ठीक है, guys, please see. ध्यान से देखिएगा. So in carbocation what happens? Initially कार्बन के पास होते हैं 4 बॉन्ड, है ना. मान लीजिए Br के साथ था, अब ये Br तो चला गया लेके, है ना. Whatever the electron था वो तो लेके चला गया, खत्म. तो अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचे बताइए गाइस. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर रिमेनिंग विद द कार्बन एटम? 3, है ना. 3 है. तो ईच बॉन्ड हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? You know what, Maria? When you do 2 balloon आ जाता है. Okay. Can you do it once again? Can you do that 2 once again? See? Noha, can you show that 2 sign in the camera? हाँ हाँ, वैसे विक्ट्री वाला कीजिए. इनके में नहीं आ रहा है. अब्दुल हमीद, कैन यू डू द विक्ट्री साइन इन कैमरा? कैमरा पे कीजिएगा, आपका तो वैसे सिर्फ सर आ रहा है. कैमरा पे कीजिए जरा विक्ट्री. कैमरा पे आ ही नहीं रहा आपका वो 2 विक्ट्री वाला साइन. कैमरा पे आना चाहिए ना. हाँ, नहीं आ ही नहीं रहा. मरियम के साथ ही हो रहा है, पता नहीं मरियम ने क्या सेटिंग करके रखी. वंस अगेन कैन यू डू मरियम? सबर करें थोड़ा. सी, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस. खैर चलिए ठीक है. ओके, सो as we can see each and every bond it has 2 electron, right? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे इसके पास, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा? बताइए गाइस. 8 डिफिशिएंट ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होने के लिए मतलब सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना चाहिए रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन, राइट. 8 से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ठीक है, तो इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट इज इलेक्ट्रॉन पुअर. तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे अगर हम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना, बिकॉज चार्ज इज नॉट गुड फॉर स्टेबिलिटी. आई होप दिस इज वेरी मतलब लॉजिकल है कि चार्ज अच्छा नहीं है, न्यूट्रल चीज ज्यादा अच्छी, राइट. इफ यू डोंट हैव एनी चार्ज. ठीक है. So in this case, what will happen? As the charge is going to increase, the stability is going to decrease. Is this clear? Yes or no? Please tell me. सही है? नुहा, अब्दुल हमीद, सिद्दीका, मार्टिन, सही ना? कोई क्लियर? कुछ और? ठीक है. ध्यान दीजिएगा. हम यहाँ पे you have carbon ion. In carbon ion, what will happen? You have carbon. इसके पास इधर 3 बॉन्ड, कुछ भी बॉन्ड होंगे इधर, and यहाँ पे आपके पास मान लीजिए Mg लगा हुआ. So in this case, what will happen? The electron pair will break, and the carbon is going to get the electron pair. So you will have carbon. You will have 3 electron like this, और एक यहाँ पे lone pair आ जाएगा with a negative charge, क्योंकि इसने Mg का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया. The Mg इलेक्ट्रॉन was not carbons. अब यहाँ पे you are having इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन. कितने हो गए? 6. और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको नेगेटिव चार्ज तो नहीं चाहिए ना. इट हैज क्या करना चाहेगा? अपना नेगेटिव चार्ज हटाना चाहेगा, राइट. So, हटाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो अमीर है ना भाई. क्या है मतलब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनका गुजारा सही होता है लेकिन फिर भी कुछ सदका करते हैं, राइट. सो सिमिलरली हियर आल्सो कार्बन के पास इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट इट इज स्टिल व्हाट? गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया वो. बात समझ में आई? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. इलेक्ट्रॉन रिच. ओके. अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी, और आपने अगर नेगेटिव चार्ज को घटाया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो एक एग्जांपल हम आपको देके बताते हैं. आप कंपेयर कीजिए. कार्बन है आपके पास, यू हैव 3 बॉन्ड्स लाइक दिस. एक पे आपके पास एक कार्बन आयन है आपके पास, एंड हियर यू हैव एडेड फ्लोरीन. और एक कार्बन आयन है ऐसे करके, यहाँ पे आपने किया हुआ है ऐड, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे आपने ऐड किया हुआ है आयोडीन. कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन वाला या आयोडीन वाला? क्या ख्याल है गाइस? कुछ ख्याल नहीं. हाँ, हाँ समझिए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा या आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? विच इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स मोर? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट.
इफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, राइट? सो एज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग पुल्ड दैट मींस नेगेटिव चार्ज इज डिक्रीजिंग। फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो दैट्स व्हाई दिस कार्बन आयन विल बी मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ये चीज आगे हम लोग करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू लर्न इट। इन कार्बन फ्री रेडिकल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये भी देख लीजिए बॉन्ड ब्रेकिंग करके। ये कार्बन, इसके पास है 3 बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास दूसरा कार्बन है, सो व्हाट विल एक इलेक्ट्रॉन इसको, सॉरी तो इसको क्या रो, एक इलेक्ट्रॉन इसको और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको। सो नाउ यू आर हैविंग कार्बन विद 3 बॉन्ड्स लाइक दिस और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे ऐसे। सो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, हियर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 कितने होंगे 6 एंड दिस इज 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉन रिच या पुअर हो जाएगा? बताओ। नो नो Deficient. डेफिशिएंट, राइट? इलेक्ट्रॉन 4 बिकॉज 8 चाहिए थे, हैं हमारे पास कितने 7। समझ में आ गई नुहा? किसी को कोई डाउट यहां तक तो बताएं। किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब इसके बाद आपने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स लिख लिया है, इसके बाद लिखिए जरा रिएक्टिव साइट्स। क्या लिखिएगा? रिएक्टिव साइट्स। ठीक है। अच्छा, रिएक्टिव साइट्स का मतलब ऐसे साइट्स जहां पे रिएजेंट अटैक करता है ना सबस्ट्रेट में। नाउ रिएक्टिव साइट्स विल बी इन द सबस्ट्रेट। रिएक्टिव साइट्स कहां पे होंगे? सबस्ट्रेट में होंगे। और इन दैट सब वहां पे आपको क्या होगा, द रिएजेंट इज गोइंग टू अटैक। वो रिएजेंट जनरली वहां पे अटैक करेगा। ठीक है, जनरली वहां पे क्या करेगा? अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टिव साइट्स में ध्यान दीजिएगा, साइट्स इन या फिर एटम, साइट्स या फिर एटम्स in substrate, atoms in substrate which have tendency to be attacked by reagent। ठीक है, जो रिएजेंट से क्या करेगा, जो रिएजेंट जहां पे आके अटैक कर सकता है। तो अभी तक जो हमने बॉन्ड ब्रेकिंग की बातें की ना, उससे हम लोग को ये चीज समझ में आई होगी। देखिए फॉर एग्जांपल CH3 और फ्लोरीन लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, या फिर फ्लोरीन नहीं ब्रोमीन कर दीजिए, आप ब्रोमीन लगाओ ना। इफ आई एम गोइंग टू लुक एट दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ब्रोमीन के पास क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा इसमें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग पुल्ड बाय ब्रोमीन एटम। नाउ दिस कार्बन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर? बोलो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच या पुअर? अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं आ गया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पुअर। सही है ना? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पुअर। अच्छा, अलग ही अगर ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पुअर है तो ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है ना? तो इससे, तो इसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो जाएगी। कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा भाग भाग के जाएगा। बोलो गाइस, कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या करेगा? भाग भाग के जाएगा। इलेक्ट्रॉन पुअर साइट है ये। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक साइट। बात समझ में आई? क्या ख्याल है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट या इलेक्ट्रॉन पुअर साइट। तो जो इलेक्ट्रॉन पुअर होगा उसी को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगी। अब दूसरी चीज हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव CH3, साथ में लगा हुआ आपके पास Mg। हियर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड कार्बन विल बिकम। देखिए कार्बन के बारे में बात करेंगे, Br में हमने यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव दिया भी नहीं, उससे हमको मतलब ही नहीं, बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट द सबस्ट्रेट तो हम लोग कार्बन एटम्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे, राइट? सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट दैट दिस CH3 इज गोइंग टू हैव अ डेल्टा नेगेटिव। अब ये क्या हो चुका है बताइए? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट है ना? अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको मोहब्बत किससे होगी? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? डेल्टा नेगेटिव है तो इसको मोहब्बत पॉजिटिव से होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव ऐसे प्रोटॉन तो घूमता फिरता हुआ नहीं रहता है। प्रोटॉन का तो एक ही जगह प्रोटॉन रहता कहां है? वेयर डज प्रोटॉन स्टे इन द एटम? न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोल देंगे? तो ये न्यूक्लियस से मोहब्बत करने लगेगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक
साइट। बात समझ में आई? क्या ख्याल है? आप रहे ना? Copy this, raise your hand once you're done. लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। Raise your hand once you're done. As we have seen, there are two different types of reactive sites. तो reagents भी जो होंगे ना, अटैक करने वाला है, जो अटैक करने वाला है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पुअर साइड पे, इलेक्ट्रॉन पुअर साइड पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच वाला, है ना। और इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच साइड में अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पुअर वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? साइट्स इन द सबस्ट्रेट व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेट अटैक्ड बाय रिएजेंट। So if you have two different types of sites, तो reagent भी दो ही किस्म के होंगे। अरे भाई बोलो, reagent भी दो किस्म के होंगे ना। We will have either electron poor reagent या फिर electron rich reagents, right? So types of reagent में you will classify like this. एक second, okay? एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर। इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल है तो electron poor. इलेक्ट्रॉन, अच्छा फाइल मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ये, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन पुअर, ऐसे चले कोई दिक्कत? अब समझ में आया ना नोहा? यस ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन लविंग, या फिर ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन पुअर। एंड अटैक्स, ये अटैक कहां करेगा? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। सही है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक। अब ये आपके पास क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे यहाँ पे, दीज इलेक्ट्रोफाइल्स, इनके अंदर टेंडेंसी क्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन तो इनके अंदर है नहीं, सो दे विल हैव, दे आर इलेक्ट्रॉन पुअर, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो होंगे। दे विल बी व्हाट? दे विल बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। generally they have positive charge और incomplete octet। वही अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, so in this case nucleophile are going to what? Nucleophile are nucleus loving, nucleus loving। न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को कौन चाहेगा?
इलेक्ट्रॉन भर भर के इलेक्ट्रॉन होगा इसमें ना, तो दीज विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। और ये अटैक कहाँ करते हैं? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन पुअर साइट्स। जनरली they have negative charge or lone pair of electrons. ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं लिखा हमने, दोनों के एग्जाम्पल्स लिखिएगा साथ में। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पुअर। इलेक्ट्रॉन पुअर में देखिए एक एग्जाम्पल होता है BF3, तो बोरॉन बॉन्डेड टू 3 फ्लोरीन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के पास? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन? 3, 6 ना, 6 होंगे। हाँ 6 होंगे, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ना, 8 होने चाहिए थे, 6 है, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। Similarly, if you have, let us suppose something like this, CH3, इसमें एक कार्बन के पास यहाँ पे एक बॉन्ड है, पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो व्हेनेवर यू विल हैव पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह से Cl पॉजिटिव, ऑल ऑफ दीज विल बी व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन पुअर, बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट देन पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिच की बात की जाए एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल के केस में, देन यू कैन हैव OH negative, SH negative, right? Then you can have C2H5O negative. So negative charges जहां भी आ जाए. Then similarly you can have NH3. अब NH3 में क्या है भाई? बोलेंगे सर NH3 में तो 3 ही का हाइड्रोजन एटम 6, यहाँ पे you will have 6 इलेक्ट्रॉन। बोलेंगे नो, नाइट्रोजन के पास जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, so this lone pair will be there. And what else you can have? You can have water, H2O. H2O के ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, so all of these are examples of what? All of these are examples of nucleus loving, that means nucleophile. Please छापिए जरा, copy this down. बाकी सबका हो गया? Mariam, can you go to the Learning View app and check for the assessment? हाँ, आज की क्लास आपको समझ में आई? Yes, sir. कल तो नहीं आ रहा होगा ना, कल तो बाउंसर जा रहा होगा सारा, है ना? आइसोमर्स वाला आपकी स्कूल में क्या चल रहा है अभी? नोहा, व्हाट डिड यू से इन योर स्कूल राइट नाउ? हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक, नहीं आइसोमर्स चल रहा है ना? Yes, sir. ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इज स्टार्टेड राइट नाउ? अभी स्टार्ट किया उन्होंने? Not yet. नोट येट। अच्छा, आइसोमर्स ही चल रहा है। Okay. आज स्कूल था आपका? Yes, sir. अच्छा, so आज आइसोमर्स चला, आइसोमर्स हुआ आपके स्कूल में? Today there was some extracurricular activities, so classes. क्लस्टर, क्लस्टर था, क्लस्टर। No, there are elections going on. इलेक्शन? क्या इलेक्शन भाई सऊदी में? For house captains. ओ अच्छा, आपकी स्कूल का इलेक्शन चल रहा है, तो वहां पे मतलब ऐसे इलेक्शन कर सकते हैं? ऐसे नहीं सीधा राजा बना देते? No.
हम तो हिंदी में बोल रहे, क्या ही पता चलने वाला अरबों को, क्या बोल रहे हैं आप? पता चला हज में जा रहे थे बड़े, तुम क्या फैला रहे थे भाई केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू गाइस? इज एवरीवन डन? तो आपने मतलब वेरी पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन? डिड यू स्टैंड फॉर एनी पोस्ट? नो? हाँ, No. व्हाई? Actually, 11th grade can't participate because the syllabus is too much. And 12th grade can participate? Yeah, 12th can. भाई जो बच्चा अभी हेड बॉय हेड गर्ल बनेंगे, उनके पास टाइमिंग क्या है? वो तभी तो उनके बोर्ड्स होने वाले हैं, उन पे तो ज्यादा प्रेशर है। सिस्टम सही नहीं है आपके स्कूल का। ये तो सारे स्कूल के सारे बच्चे एग्री करेंगे भाई, मेरे स्कूल में तो नहीं सिस्टम सही, कुछ सिस्टम सही नहीं है मेरे स्कूल में। खैर, आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं नोहा? I joined this year. अच्छा, यू जॉइंड दिस ईयर ओनली। हाँ, तब तो आप नहीं खड़े हो तो अच्छा है, आपको कौन ही जानेगा वहां। इससे पहले कहाँ थे आप? I was in Yara International School. अच्छा, यू वर इन यारा इंटर। यारा से कोई है क्या? यारा इंटरनेशनल से कोई है? एनीवन? नो, नो वन इज फ्रॉम यारा। थे कुछ बच्चे थे यारा इंटरनेशनल से मेरे पास, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स नाउ। यारा का मतलब क्या होता है भाई? इंडिया में तो नहीं हो सकता ऐसा स्कूल, उसका फिर मीम बनने लगता है सिर्फ। अब्दुल हमीद इज सेइंग मेरे स्कूल में केजी में भी हेड बॉय हेड गर्ल है। एजी तो मॉनिटर बोलते हैं उसको, उसको मॉनिटर बोलते हैं अब्दुल हमीद। हेड गर्ल है। नहीं, मॉनिटर अलग है और हेड बॉय हेड गर्ल अलग है। ये जब से ये जो होता है ना, एक चीज होती है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यू नो दिस? यस सर। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू, मतलब इवन हमारे टाइम में भी आ चुका था। ये बेकार चीज है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भाई। मतलब आपने यस सर बोल के कोई चीज अटेंड की है तो ये हो गया ना हेड बाय हेड, मतलब बेमतलब के मतलब ये पोस्ट बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को बेमतलब का कॉन्फिडेंस आए। केजी के बच्चे के अंदर क्या होगा भाई? केजी का बच्चा कुछ नहीं जानता है, उसको दो मतलब ऐसे चप्पल नहीं, इन द सेंस कि उसको दो थप्पड़ लगे, वो काम करे। पढ़ाई, देखिए ऑब्वियसली दिस कंप्लीट थिंग ऑफ लर्निंग, पढ़ाई लिखाई करना ये नेचुरल चीज नहीं है बिल्कुल, है ना? मतलब ऐसे किसी को मन नहीं करने लगता बचपन से ही पढ़ाई करने का, वो मतलब धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है आदमी। खेलने कूदने का देखो आप किसी बच्चे को कुछ मत बोलो खेलने कूदने, कोई भी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे को कुछ नहीं बोलो वो पढ़ाई कर रहा है? इल्ला माशाल्लाह। मतलब रामानुजन वगैरह कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मतलब पता चलता है हाँ भाई, मतलब बच्चा उठा पैदा हुआ और पढ़ने लगा। बट इन जनरल देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं खेलने कूदने के लिए होते हैं, पढ़ाई तो कराई जाती है ना। अब पढ़ाई में फिर भी मतलब का कॉन्फिडेंस लाते हैं, फिर अचानक एक बार कॉन्फिडेंस टूटता है और बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। बेमतलब का कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए बच्चे को, अगर आता है तो वेल एंड गुड, उस आने की वजह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, यू गिव सम टास्क टू स्टूडेंट्स, उसमें हाँ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस खत्म करने की बात नहीं कर रहे। यू गिव सम टास्क, बोल बोल के आप टास्क दीजिए, टास्क